one of my elder brother, he is 37 years of old right now. But when he was 32 years of old, he started his journey with real estate broker as a broker. हर किसी की तरह उसने अपने जर्नी को नॉर्मली ब्रोकरी के साथ स्टार्ट किया था. नॉर्मल फ्लैट्स बेचना, नॉर्मल लैंड्स बेचना, नॉर्मल किसी अनमैरिड कपल को, किसी कपल मैरिड को, किसी बैचलर को या फिर किसी स्टूडेंट को घर देना, एंड बीच में 1 महीने का रेंट ओनर से लेना एंड पार्टी से लेना, एंड लैंड पे फ्लैट्स पे 1-2% का कमीशन लेना. नॉर्मली उसने अपने जर्नी को स्टार्ट किया था. उसके दिमाग में उतना कुछ नहीं था कि उसको आज जैसे एक बड़ा एम्पायर बनाना है. आफ्टर 5 इयर्स मेरा एक बहुत बड़ा एम्पायर होगा. हाँ, मतलब डिल्यूजन था, हाँ मुझे बनना है, बट प्रॉपर प्लान नहीं था उसके पास. वो जस्ट नॉर्मली उसके जर्नी को उसने स्टार्ट किया. व्हाई? बिकॉज उसको घर में पैसे लाने थे, उसके बीवी था, उसका बच्चा था. अगर वो पैसे नहीं लाएगा तो हिज फैमिली इज डेड. उसके घर को खाना नहीं मिलेगा, उसके बच्चा जो है बिना खा के सोएगा, उसकी बीवी जो है भूख पेट सोएगी. तो उसे वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगी. Right? So that's why he started his career in a profession where everyone earns money. Real estate is the field. As a broker, if you're a broker and if you are a smart broker, not a proper hard-working broker, of course you have to hard work, but if you're a smart-working broker, you can earn a hell lot of money in real estate. So in my family, everyone is smart. In our blood, smartness is like चलता है वो खून में ही चलता है smartness. ठीक है. Anyway, I'm so great, I'm G. But my elder brother, after 5 years, he built a great empire. उसके साथ करीबन राइट नाउ आसनसोल में बहुत सारे रियलेटर काम कर रहे हैं, बिल्डर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आसनसोल में बनने हुए हैं जो कि नंबर 1 नंबर 2 में रैंक कर रहे हैं. एवरीथिंग ही इज ग्रेट, ही इज डूइंग हिज ग्रेट. ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. बट सडनली इन 2026 फरवरी का मंथ था, he got a job offer from India's one of the biggest real estate company, one of the biggest. मैं नाम नहीं लूंगा. He offered a job मेरे भैया को, and they are willing to give money. अगर मेरे भैया वहां पे 5 साल भी काम करते हैं ना, तो 7 पुश्ते बैठ के खाएगी, इतना पैसा वो लोग दे रहे थे. My brother, elder brother, as a founder, he is making around a good lot of money, but they are willing to give 4x 5x the amount he's earning in this business. At the end 5 years है उसका business at the end, and वो लोग in the market for 50 years, for 35 years or 40 years बैठे हुए. Of course they have a lot of money. And also, like the comment you have seen in this thumbnail, तुम लोगों ने I think believe मैं कर रहा हूँ कि thumbnail पे click करके आया है, तुमने thumbnail पे जो comment है उसने तुम्हें पढ़ा होगा. And I believe कि same situation मेरे भैया के पास ही था. My bhaiya was feeling stuck. He don't know what to do. He don't know what is the right decision, what is the wrong decision. He don't know where to go. He knows that he can do more in this business, but he can't do. ठीक है, and feeling all those overthinking a lot. And the comment is also the same. He's feeling stuck. He don't know what is wrong, what is right. He don't know that what will be the right decision for him, what will be the best option for him. And he knows that he can do more than what he is doing right now. He's just feeling stuck. Most of the people who will see the comment and feel like, oh, ये तो बहुत deep comment है यार, ये बंदे को मैं कैसे reply दूँ? He's fucking deep, he's very mysterious. Not at all. He is not at all mysterious. That is not at all deep. ये पूरा normal है. What his problem is he's not stuck. His problem is he doesn't have clarity, lack of clarity, and defining that as a mysterious problem. That is not at all mysterious problem. You don't have clarity. कोई भी इंसान अगर सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई भी इंसान अगर इस वीडियो को देख रहा है and is facing the same problem, then let me tell you something. You don't have clarity. अपने आप को टाइम दो, अपने आप के साथ रूम में खुद को बंद करके 1 घंटा बैठो, एक पेन लो, एक पेपर लो, and write down the things you want to do in your life.
राइट डाउन द थिंग्स जो कि तुम्हें करना पसंद है, राइट डाउन द थिंग्स की जो तुम्हें फ्यूचर में अचीव करना है, राइट डाउन द थिंग्स की कैसे तुम्हें अपना घर चाहिए, कैसे तुम्हें अपनी बीवी चाहिए, कैसे तुम्हें अपना डॉग चाहिए, कैसे तुम्हें अपना घर में इंटीरियर चाहिए। राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स एंड मेक अ प्लान, एंड मेक अ गुड प्लान कि ऐसे ऐसे चीजें अचीव करने के लिए मुझे क्या 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 करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट क्लैरिटी तुम लाइफ में किसी भी जगह पे नहीं जा सकते। विदाउट क्लैरिटी तुम किसी एक ऑप्शन को चूज करोगे, उसको 6-7 महीना करोगे, एंड फिर जब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तुम फिर से सोचो कि आई एम स्टक, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मैं कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करूं, क्या मैं वेबसाइट बनाऊं, क्या मैं एआई ऑटोमेशन सेल करूं, तुम्हें पता नहीं चलेगा। राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू sit with yourself and take a pen and take a copy and do what I've told you। ठीक है? Most of the times लैक ऑफ क्लैरिटी के लिए ना तुम्हें एक अच्छा मेंटोर की जरूरत होती है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू एन नंबरस टाइमली दैट इन माई टेलीग्राम चैनल मैं डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल वॉइस नोट्स, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते ही रहता हूँ। इन माई टेलीग्राम चैनल मैं वहां पे डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, फीमेल साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस टेनेट्स के बारे में बात करता हूँ, मैं कैसे अपने बिजनेस को ऑपरेट करता हूँ वैसे टाइप के बारे में बात करता हूँ, कौन से बिजनेस 2026 में बूम कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली ही उसके बारे में एक 3 बिजनेस आइडिया मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिया है। सो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो या फिर बंदी हो जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है एंड ही डोंट नो व्हाट बिजनेस टू स्टार्ट, जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू विल सी अ प्रॉपर रिटन लेटर, अ मेल where I have made you understand कि कौन सा बिजनेस तुम्हारे लिए सही रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं ना तो लोग ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बट दैट्स नॉट द केस। ओवरथिंकिंग will only do one thing, and which is degrade your life। degrade your life। तुम ओवरथिंकिंग करके क्या कर लोगे? ओवरथिंकिंग अबाउट व्हाट? I never overthink। Why I will overthink? I know I have to do this thing। ओवरथिंकिंग तुम तभी करते हो जब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि मुझे ये करना है, and I have to stick that on with decade। I have to stick in this thing for a decade, and तब मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरथिंकिंग तुम तब करते हो जब तुम्हें पता है कि यू आर नॉट गिविंग योर 100%। ओवरथिंकिंग तुम तब करते हो जब तुम्हें पता है यू कैन डू मोर देन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। जब तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है बट तुम उस पोटेंशियल को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं ये चीज कर सकता हूं बट मैं वो चीज नहीं कर रहा हूं, तब तुम ओवरथिंक करते हो। व्हाई यू आर डूइंग दैट? व्हाई? व्हाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन? एक्शन बीट्स एवरीथिंग। I have my one business philosophy that no matter what, I will take action। I will take fucking action immediately and with speed। मैं स्पीड के साथ मैंने जो चीज बोला है मैं वो एक्शन लूंगा विद इन 1 to 2 hours। अगर मैं वो चीज नहीं कर पाता हूं then I'm a fucking pussy, I'm a gay। ठीक है? तो इस चीज को फॉलो करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं अगर इस चीज के ऊपर एक्शन लूंगा तो मैं श्योरली आज नहीं तो कल इसका रिटर्न्स मुझे मिलेगा, देन टेक एक्शन विद इन 1 to 2 hours एंड डू नॉट प्रोकास्टिनेट कि ओ यार मैं बाद में कर लूंगा, इस ये तो है मेरे अंदर तो आइडिया है, मेरे अंदर तो पोटेंशियल है, मैं बाद में कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। नो, यू हैव टू डू राइट नाउ। टेक एक्शन। बिकॉज द रीजन यू ओवरथिंक अ लॉट बिकॉज ऑफ वन थिंग, ओनली वन थिंग इज लो आउटपुट। तुम आउटपुट बहुत ज्यादा लो देते हो, इज दैट्स व्हाई यू गेट लो कॉन्फिडेंस। इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इसीलिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए तुम ओवरथिंक करते हो क्योंकि तुम एक्शन ही बहुत कम लेते हो। दैट्स व्हाई यू ओवरथिंक अ लॉट, क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेते हो, तुम तो बस सोचते जाते हो। व्हाट यू डू, तुम पहले सोचते हो, यू थिंक फर्स्ट, देन यू प्लान, देन यू डाउट योरसेल्फ, एंड तुम इस लूप पे फंस जाते हो। एंड दैट्स व्हाई यू टेल योरसेल्फ कि मैं किसी जगह पे स्टक हूं, मैं इस जगह पे फंसा हुआ हूं, बट एक्चुअली में तुम फंसे नहीं हुए हो। तुम एक्चुअली में फंसे नहीं हुए हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। दैट्स व्हाई यू ऑल्सो गेट फियर ऑफ चूजिंग कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, हाउ यू कैन चूज व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। चूज द ऑप्शन विच इज द हार्डेस्ट ऑप्शन। चूज द ऑप्शन जहां पे तुम्हें पता है कि जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना है, सबसे ज्यादा तुम्हें हार्ड वर्क करना है, उस ऑप्शन को चूज करो। बिकॉज
मैं जब भी कोई ऑप्शन चूज करता हूँ एंड आई फील लाइक ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो मुझे रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। एंड व्हेन आई चूज एन ऑप्शन जहां पे मुझे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है, बिलीव मी, आई गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। आई गेट अ लॉट ऑफ रिटर्न्स बिकॉज अगर तुम किसी एक ऑप्शन को चूज करते हो जहां पे तुम्हें हार्ड वर्क करना है, तो वो चीज तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगी ही बनाएगी, बिकॉज हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ मैन कैन डू, राइट? And also, do choose the right option. Do not choose the wrong option for you. Choose the right option where you know that this option is the best option for me. This option is also good for me. This option is the right option. And this option also the hardest option. So choose the right one. जहां तुम्हें पता है कि हाँ, मैं इस चीज को अगर ऑप्शन को चूज करूंगा तो मुझे एक मिनिमल फिजिकल एफर्ट देना पड़ेगा, इमोशनल एफर्ट देना पड़ेगा एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट भी देना पड़ेगा। दिस इज हार्ड फॉर मी, दिस इज नॉट इजी फॉर मी, एंड विच इज हार्ड that can give you more returns compared to what is easy, right? That's it. I believe that मैंने जो जो चीजें इस वीडियो में बोला है, अगर वो चीजें तुम इम्प्लीमेंट करते हो, हाँ, विदाउट इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स तुम कुछ भी बक सकते हो, बट अगर तुम जेन्युइनली इम्प्लीमेंट करते हो, आई बिलीव दैट यू विल गेट आउट फ्रॉम योर सिचुएशन।